Hello everyone, good evening, how are you all? I hope you all are fit and fine. So today we are continuing again with the parts of speech. Now I am going to tell you that we started parts of speech with noun. We learned everything about noun, its types, how it works, everything. After that we learned about pronouns, everything about the pronoun. At the same time we learned about the adjective, how it qualifies noun. Then we learned about the verb and adverb, how adverb qualifies verb and how many types of verbs are there, how it works, everything. Now the major portion of parts of speech is over. These are the portion, these are also major portion only, but in fact we have to learn separately as a chapter. हमें सीखना पड़ेगा अलग से बिल्कुल चैप्टर वाइज. But to cover all these 8 points, I am gonna tell you little bit about the preposition and conjunction and interjection. So let us start for the day. Preposition. Already it is likewise. Anything which takes place before that. कोई भी एक ऐसी चीज जो पहले स्थान लेती है, उसी से ये बना हुआ वर्ड preposition. So what is preposition? I have written definition of preposition that you can see on the board. A preposition is a word placed before a noun. एक preposition एक शब्द है जो कि रखा जाता है संज्ञा से पहले, और प्रोनाउन या सर्वनाम से भी पहले रखा जा सकता है. टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध दिखाने के लिए बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स. संज्ञाओं के बीच में या सर्वनाम के बीच में या दूसरे शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन. I written 2 examples here that make you clear. 2 examples मैंने लिख दिए हैं. They live in a Jaipur. If you see here, they is what? Pronoun. Jaipur is what? Noun. And in is what? Preposition. So this noun is making relation with they with the help of in. Otherwise, if I remove in, then this sentence will be not authenticated one or will not give complete meaning. Then what it would become? They live Jaipur. The full and actual and the correct meaning of the sentence will not come, and it doesn't come. For that we need preposition. So there are a lot of prepositions that we have to learn separately. There are prepositions of time, place, motion, some miscellaneous are there, some witty one, brainies are there, some fixed prepositions are there. So everything we have to learn about the preposition. So we are not covering right now, because we have to start with the tenses, and after that in between the chapter would come about the preposition, and that time we would learn about the preposition. Second example, what I have written, the books are on the table. Now here you can see the books and table are related with the word on, that is preposition, and this thing is noun and this is also noun. Now both are correlated, दोनों को जोड़ा गया है, पर जोड़ना नहीं कह सकते यहाँ पर, दोनों का संबंध जरूर स्थापित हुआ है. किसके द्वारा? वर्ड ऑन के द्वारा. और ये जो वर्ड है दैट इज व्हाट द प्रीपोजिशन. ऐसे बहुत सारे हैं, इन, ऑन, इनटू, ओवर, अबव, बिलो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिफोर, आफ्टर, इनटू, अंडरनीथ, एटसेट्रा एटसेट्रा. वंस वी लर्न the chapter, that time we learn about all these prepositions. But I have made one note here for you all to understand that there are many prepositions which we will learn as a chapter. एक चैप्टर के रूप में हम इसे सीखेंगे. Now next thing what comes, I hope ये समझ में आ ही गया होगा आपको. Next, conjunction. अगर मैं कन वर्ड हटा देता हूं यहां से तो ये वर्ड बन जाता है जंक्शन. जंक्शन का मतलब आप समझते हैं किसी दो चीजों का मिलना.
दो चीजों का मिलना, दैट इज जंक्शन, ये जंक्शन है। और कंजक्शन का मतलब हो जाता है कि ये दो चीजों को जोड़ देना, मिलना, मिलाना और जोड़ देना। सो लाइकवाइज व्हाट कंजक्शन डज, ए कंजक्शन दैट जॉइंस टुगेदर, जोड़ देता है साथ साथ में वर्ड्स, शब्दों को भी जोड़ सकता है, सेंटेंसेस इटसेल्फ, वाक्यों को ही पूरा का पूरा जोड़ सकता है, क्लॉज फॉर्म में, अभी कुछ मैंने दिखाया था आपको एडवर्ब्स में, क्लॉज फॉर्म में भी चीजों को जोड़ा जा सकता है इससे। ऑफ द इक्वल रैंक, इक्वल रैंक्स का होना चाहिए, इक्वल रैंक्स का मतलब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, वर्ब से वर्ब जुड़ेगा, या सेंटेंस के इन बिटवीन आ सकता है, इक्वल रैंक का होना चाहिए। तो वो हम सब चैप्टर में सीखेंगे, इट्स ए वेरी लेंथी चैप्टर, बट उसमें सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर, so that we'll be learning. But I have written one definition here, so that will be useful to you to understand right now here that how the parts of speech, in that there are 8 points, out of that 8, 7 number is conjunction, and conjunction is what? A conjunction that joins together words, sentences or clause of equal ranks. I have written 2 examples here. He is ill, he is cheerful. If you see, both are independent sentence. दोनों बिल्कुल अलग अलग सेंटेंस है, अभी कोई जुड़े हुए नहीं है। बट हम यहाँ पे सेंटेंस की जोड़ने के बजाय हमने दो वर्ड का सिलेक्शन कर लिया है। व्हाई? बिकॉज ही इज और ही इज दोनों ही कॉमन है, इसलिए हम इसको वापस यूज करें, कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज इसे जोड़ा जा सकता था, ही इज इल बट ही इज चीयरफुल, दैट कैन आल्सो बी डन, लेकिन यहां नहीं कर रहे हैं। यहां पे इल वर्ड ले लिया और चीयरफुल ले लिया, दोनों के बीच में हमने बट लगा दिया। बट का मतलब होता है लेकिन, आपको पता ही है। सो ही इज इल, ही इज चीयरफुल, इसका फाइनली हम जोड़कर क्या निकाला हम लोगों ने? ही इज इल बट चीयरफुल। इस प्रकार से ये कंजक्शन बट यूज हो रहा है यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए। Now another one I have written, Ram is playing, Shyam is playing. Now both are independent sentence, कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है right now, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। But we can join this by using conjunction. There are many types of conjunction. We can use even not only but also as well as, लेकिन मैंने यहाँ पर and का ही प्रयोग किया है। तो राम एंड श्याम दोनों वर्ड्स को ले लिया है, नाउन है दोनों, और उसके बाद में आर प्लेइंग। आर भी क्यों आया? इसकी बजाय प्लूरल केस हो गया। ये सारी चीजें हमें कंजक्शन के चैप्टर में सीखना पड़ेगा। कौन सा कंजक्शन जब हम लेते हैं तो कैसे उसमें से वर्ब हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, ये सारी चीजें हमें उस चैप्टर में सीखना पड़ेगा। बहुत ही लंबा सा चैप्टर होगा, बट आई रिटन हियर, हाईलाइटेड हियर, देयर आर मेनी कंजक्शंस, बहुत सारे कंजक्शन विच वी विल लर्न सेपरेटली, हम अलग से पढ़ेंगे। नाउ रिमेनिंग विद इंटरजेक्शन. So I am going to tell you about the interjection also today, and with that we will complete parts of speech, and after that we are going to start with the formations. So before entering into the tenses, we will have lot many other formations which generally is not touched in the schools, but here we are going to learn because that is so important for us to read, write and speak. So we are continuing the last portion of the parts of the speech, and what is that? Interjection. Day to day life we keep on using, but we don't know these are interjection. In Hindi, "Arey mar gaya," "Oh, arey," something like that. So what is that? Interjection. Though it's not part of exactly the word having any meaning, but very much connected with the grammar. That's what is the parts of speech. Though these words are not having literal meaning, some people may use in different way, but certainly as it is a part of speech, so certain things are fixed now. That okay, if you have to express this feeling, then use this interjection sign. प्रतीक ये प्रतीक बना दिए गए, पर आपके मुंह से कुछ और भी आवाज निकल सकती है, लेकिन वो प्रतीक कैसे बना दिए गए वही हमें सीखना है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, मैंने डेफिनेशन लिखा है, रिटन डेफिनेशन। एक शब्द है एडेड, जो कि जोड़ दिया जाता है टू ए सेंटेंस, एक वाक्य में। जैसे मैं बोल के बता देता हूं, वाओ व्हाट ए नाइस बिल्डिंग, ऐसे। सो एडेड टू ए सेंटेंस टू कन्वे एन इमोशन, भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए,
पहुंचाने के लिए लोगों तक, और ए सेंटिमेंट, फीलिंग, एहसास। वो एहसास कैसे हो सकते हैं? सच ए सरप्राइज, आश्चर्य के भाव है, डिस्गस्ट, घृणा है, उसको भी जॉय, खुशी, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, ओह वाओ, समथिंग लाइक दैट, इंथुजियाज्म, उत्साह, थोड़ा इसमें भी एक्साइटमेंट आ ही जाता है। होता क्या है कि सडन बर्स्ट ऑफ एक्सप्रेशन बाय द पर्सन और स्पीकर, अचानक ही अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर देना, उसको पता भी नहीं होता है, माइंड पे इतना कंट्रोल भी नहीं होता है कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो कर जाता है। और कब होता है? जब सडनली कुछ आप ऐसा देखते हो अनएक्सपेक्टेड, या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो जाती है इन दैट वे। तो बहुत सारे हैं, कुछ मैंने लिखे हैं, आई डोंट से कि पूरा मैंने कवर कर दिया है यहाँ पे सारे, लेकिन कुछ आने ही चाहिए हमें एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, इसलिए मैंने ये लिख दिया है और मैं आपको सब समझाने वाला हूं। तो क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग जनरली यूज करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं, लेकिन पेपर पे ला नहीं पाते हैं। तो अगर हम ये सब जानते हैं तो वी कैन राइट विद द स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, वाओ व्हाट ए नाइस कार इट इज, व्हाट ए नाइस बिल्डिंग, हुर्रे आई हैव पास्ड, लाइक अरे मैं तो पास हो गया, आशा थी फेल होने की, हो गए पास, अत्यधिक खुशी, और उसको शो करने के लिए हुर्रे, समथिंग लाइक दैट। मैंने कुछ कैटेगरी बना दी है। एनॉयस यानी नाराजगी होती है, उसको हम इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ऑयल, हाँ, बोर्डम, बोर हो रहे हैं, ओ हम सा बोलने के लिए। डिसअप्रूवल, किस चीज की अस्वीकृति कर रहे, ना 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 ना, ऐसे हम जो मुंह से करते हैं, यू कैन यूज दिस। ब्रावो हम कब यूज करते हैं? शाबाशी देने के लिए, एप्लॉज करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। शाबाश तुम पास हो गए, शाबाश हम जीत गए। सो लाइकवाइज, तो हम यहां पर ब्रेवो का यूज कर सकते हैं। डिसमे, निराशा प्रदर्शित करने के लिए, ओ नो ऐसे कैसे हो गया, उप्स, बहुत ही ज्यादा होता है उप्स। डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि के भाव पैदा करने के लिए, डैम, लास्ट, समथिंग लाइकवाइज, पेपर पे मुंह से कुछ भी निकलेगा ऐसे टाइम। डाउट है, संदेह, पता नहीं क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं, समथिंग लाइक दैट। पेन, दर्द, इंजेक्शन लगा, अभी कोरोना काल में इंजेक्शन लगे रहो, लगते ओ भाई, आउच, ओ, समथिंग लाइक दैट। जॉय, खुशी, हरे मैंने ये कर दिया, या वो हो, समथिंग लाइक, मुंह से कुछ ऐसा निकलता है, उसी को साइन बना दिया गया। सरप्राइज, वाओ सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, साइन। थिंकिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, हम, फेसबुक चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, कुछ सोच रहे हैं उसके लिए जब टाइप कर देते हैं हम। रिलीफ, कुछ राहत पहुंची, कुछ परेशानी थी, कुछ राहत पहुंची है। फ्यू, वाह ऐसे हम सो कर सकते हैं। सोरो, अल्लास, खल्लास, अल्लास माई फ्रेंड इज डेड, अल्लास आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। सेलिब्रेशन, यप्पी, हुर्रे, silence. In hospital you can see it is written like this. So I have covered some of the interjection signs, and I hope you might have understood all the parts of the speech we have covered. And now we'll be entering into the formations. So many new formations you are going to learn before tenses start. So you'll enjoy now, because these areas are a bit boring, I do say. But it's not that boring. We have to have knowledge, because it comes in examination. And it's not that it is going to come now only. It is going to come in the future also. When you pass, you become graduate, you complete your graduation or post-graduation, and after that you have to appear for
competitive examinations, in that also parts of speech is asked. So likewise, we have to learn, and we have completed today. So thank you very much for the day class, and now we'll be joining live and I will make you understand further. Thank you once again. Take care. Bye bye.